So I've started recording, and today we are going to uh, demonstrate how we can go ahead in the websites you have created. So first of all, we have taken the case of Dr. Millie. She has created a good creative website, and now there are some stuck points which are going to be removed now. Ayush is yes, Ayush is taking care for this. Yes, So I Ayush. want to ask you one thing. Hmm. Whether when we make changes that will appear on the website Hmm. ready Hmm. on that time itself. So I could not take your question, ma'am. Can you repeat, please? Actually, when we publish it, Okay. the things are seen on website on that time itself. It will not be taking any gap of any time gap in between. So what happens as soon as you are uh, pressing the publish button, Okay. it makes the change live. But if you are not pressing publish button and you are making changes, then those changes are being done in the background, but it is not getting published. And Okay. as soon as you click on the publish button, it means you have given right to the WordPress to publish this now, and that change will gets reflected instantly without spending any time. देर इज नो टाइम लैग. पब्लिशिंग में कोई टाइम लैग नहीं होता. जैसे ही आपने पब्लिश बटन दबाया, इट विल गो ऑनलाइन. Okay. Okay. Right, ma'am? You also can edit this section. Just simply click on this update button and you can see the live changes. When I refresh this page, like this. Okay. Right, ma'am? और अगर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा आपकी वेबसाइट पे. Okay. That plants pictures are there, no? Okay. Below that. These one. Yes. These are the products, right? Okay. Okay. Like if you want to sell your products online. Okay.
Yes, just a second. Just click on active to dashboard. Okay. These are the product section, right? When you click on all products, Okay. Okay, there I can change it, right? yes, yes. If you want to sell your products online, right? Okay. Okay. You can simply edit this section. And Okay. And you can delete the product from here. In case you want to make only 4 products, you can delete 2 from there, or you can edit any product directly with WordPress or through Elementor. Both the options are there. Okay. this is money plant. You can see. So what is your product? You just put there, like in case you are putting over there samosa, just write I use samosa there. What's your first product, ma'am, which is very much popular? You make that one. Okay. What is your product which is so popular? So you have Vada. Vada. Yes. I use Vada likho VADA. Okay, just a second. VADA. V capital. V caps में कर रहे हैं. Great. And what would you like to write in the description? Any one line, whatever roughly you remember about that, you just please speak and I will write it for you. Whether that be about the feel that it gives or it's about the ingredients or something like that. So, Satya, Ayush, so you put only Bada over there. So Dr. Millie will make the further changes in the description. You put only Bada in the description also. BADA, that's it. Okay. And these are the price sections, right? Okay. Like your regular price and your sale price. And Okay. you can like set the price which you want. Like please tell me the price, like XY something. Okay. Any Put it roughly, 10. just for demonstration. 10. 10. Okay. 10 रखो regular price and sale price 8 कर दो. तो 2 से पता चल जाएगा कि difference आपका 2 का discount है. Okay. And in this Okay. description also you can put बड़ा description. Okay. बड़ा short description. बड़ा short description. Dash short description लिख दो. Short description. SHORT. SHORT. Description. DESCRIPTION. Okay, great. Then next. So Ayush, the currency is also required to change. Yes. So okay, just simply click on this update button, and if you want to change the currency, then we can do from the WooCommerce, right? WooCommerce is a plugin, like it's a e-commerce type plugin. If you want to sell your products online, then you can select it from WooCommerce setting, right? Then just simply click on WooCommerce and then click on WooCommerce setting if you want to change the currency. okay, so Okay. I'll tell you what is this. Okay. Yes, Ayush, please make. You also can, yes, you also can select the country. Okay. From here. Okay. India. Like India, Andhra Pradesh, India, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar. So put India simply. Okay. Or Goa is there. In case Goa is there, put Goa over there. Yes, India, Goa. That's nice. What is zip code? You also can put over there. 403509. 403509. 403509. Okay. Yes. Yes. Okay. Selling. And you can also select your selling locations where you want to sell your products, like sell to all over countries and sell to a specific location, right? Okay. And this is like ship to all your countries you sell to, and show up your base address. Okay.
and you can see here currency option is there, right? If you want to change it Okay. like pound, Indian. like it's UK, I UK currency is over there, like Indian rupee. right, Indian rupees. Okay. Then click on this Indian rupees and then click on save changes option, right? Okay. Yes, WooCommerce so we can find in plugins, right? yes. You just go in a WooCommerce, right? Then Okay. you can see these are the sub menus of WooCommerce: home, Okay. orders, customers, coupons, report, setting, status, extension, Okay. right? Then Okay. you just simply click on this setting option, Okay. and Okay. you can see the various types of options over there: general, products, shipping, payment, accounts, right? Then Okay. simply click on payment option. Okay. Just a minute, Ayush. Yes. So this WordPress is just like you are constructing your building, your office Okay. building, and Okay. wherein if you are constructing this yourself, means you are monitoring and you are arranging everything, then what you have to do, you have to put cement somewhere, you have to put mortar somewhere, you have to put some bricks somewhere. So everything you have to store somewhere before starting your construction work. The same way, exactly same way, the WordPress works. Means in case you have some products, then you have to put your products in something, a different room. And if you want to sell something, then you have to go to the sale counter. The sale counter would be different, the go down would be different, the front office would be different. The same way what it does, if you have designed some theme, that would be parked in the themes folder. If you have arranged some plugins, that plugins will be arranged in a plugin folder. And if you have created some, or you want to create some products, that will be parked in the products folder. And the sale related settings, money related settings, all will come in the WooCommerce, wherein the commerce words is coming over there. So means the whole settings related to your payment gateway, payment collection, and currency, and your location, everything will be decided in the WooCommerce section. So you will decide it over there, you will set it over there, and it gets reflected automatically in your website. And you create your product in the product folder, it will get automatically reflected in the website. So you have to go to that particular area, and for that you should be familiar with this left side drop down menu. Left side, these all the tabs which are being seen here. So आप इन सबको देखें, WooCommerce किस काम आता है, then plugins, products, analytics, marketing, everything is been there. हर चीज का वहां एक मतलब है, और वहां से आप देख सकते हैं. तो अभी हमें क्या जरूरत पड़ी है आज, एक तो प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ी है. तो वी विल गो टू द प्रोडक्ट सेक्शन, एंड देन देयर वी वुड decide our product, we'll make the changes. And if we are going to integrate the payment gateway, then we have to go to WooCommerce. Now Ayush, please explain how you will integrate your payment gateway in case you want to सेल इट ऑनलाइन. देखिए कितने बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो. यस, पेमेंट सेटिंग्स प्लीज बताएं. Okay, so you can see these are the options over there: general, products, shipping, payments, accounts and privacy, emails, integration and advanced, right? If you want to integrate the like a payment gateway in your website to receive the payments, then you just simply click on the this payments option, right? Okay. Yes, so by default these are the options over there: direct bank transfer, check payments, cash on delivery and PayPal standard, right? And if you also want to add the like InstaMojo payment gateway, so you can just simply go to the plugin section and install InstaMojo payment gateway over there, right? Okay. So, Whether I can add Google Pay and all? yes. So Yes, these are the parts of like InstaMojo payment gateway. And yes, Ayush. So I'll make you learn this. That there are 3 options over there. In case Okay. there is a direct bank transfer, then in your case, if you are creating a website and if somebody is paying from their
credit card or through debit card or online banking, then it would be difficult to the person to direct transfer the money in your account. That is not convenience way. So what you should do, cash payment, you can take one option, and direct bank transfer will remain over there, but it is not being generally used by the customers because it is not a convenient and handy option to pay. Okay. So what people like to pay means that should be handy, either through barcode scanning, code scanning, or just typing UPI ID or Google Pay, Phone Pay, or credit card or debit card. These are the handy options. So for that purpose, what we should do, we should, I mean, integrate our third party payment gateway. So that is very much popular in India and everywhere. In India, we have 3-4 applications which you should use, and that is free of cost. That's free of cost. I mean, they charge a little bit for their convenience. So you can go with InstaMojo. That is so sophisticated and convenient way. PayUmoney, Razorpay. So with any of them, you can integrate here. And in case, because they are domestic kind of payment gateways, and if you are going to have money or sale in case, if it is there for somebody, then PayPal is for international payments, PayPal. So go for PayPal only if you are going to sell something and you are going to have payment from outside India. Otherwise, PayPal is not needed. It is not a convenient way. So convenient way is InstaMojo, PayUmoney. You can go with any of them. So before starting, so you should create one account on InstaMojo or this PayUmoney. So I'm going to demonstrate here how you can do this. It is a very much simple. Yes, Ayush, I'm going to disconnect your screen. Yes. So what you have to do, simply go to InstaMojo. InstaMojo. So I'll make it from another account. So that's a big learning for today. Yes, Bix payment में भी available है ये. This all is available. ये सारे payment gate पे सारी जगह काम करते हैं. So you don't worry. Anywhere you can use them. So I'm going to InstaMojo. On InstaMojo, you have to log in over there, sign up. So for sign up, what you would require your bank account and your PAN card. In case your bank account is in the name of your business, firm name, and you are proprietor, then you can use your PAN card there. You need not to have a PAN card of your organization just for startup. In case you have PAN card of your organization, then it is so easy. So you have to have these two documents to submit to InstaMojo or PayUmoney. इनको आपको ये दोनों अकाउंट यहाँ आपको डालने पड़ेंगे और उसके बाद ये आपको एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे. So I'm going there, like my account is there, my personal account I'm going to open. Just a minute. अगर ये open करता है तो. No, I'm not. Mhm. Just a minute. Wait little bit. InstaMojo. So I forget the password over there. Mhm.
Okay, I'm going to. दूसरा है, मैं पर्सनल अकाउंट दिखा रहा हूँ सो दैट उनको बड़ा कन्वीनियंट हो. This is my personal account wherein it is asking me for the documents which I have not submitted. One document is missing. So here you will see there is API and plugin. API and plugin. So this API, private key, private authorization key, and this salt, these are the keys of my account. So I have to copy these things and I have to put in my website so that my website will be integrated with this InstaMojo, and InstaMojo will be integrated as a part of my website for payment collection and giving that payment in my bank account. तो ऐसे करके यहां से आप ये डिटेल्स लेंगे और उनको आप कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पर आयुष अब दिखाएं प्लीज इंस्टा यहां से कैसे. एंड एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका, एक इंस्टामोजो का प्लगइन इंस्टॉल करके दे दें उनको. Okay. इन केस यू हैव. Just simply click on plugins option and then click on add new option. So do you have your plugin handy? आपके पास है? And you can search it InstaMojo payment. अच्छा, आपने कहाँ सर्च किया अभी ये? वर्डप्रेस में. Yes. So आपके वर्डप्रेस सेक्शन में इन्होंने सर्च किया. There are a lot of things available. ये है नीचे आए आयुष. InstaMojo for WooCommerce. This one, right? InstaMojo for WooCommerce. Then simply click on this install now option. And this is a little software which is going to create an interface between these two things, your website and InstaMojo. Now, after installation, you have to activate this. It will get activated. And now you'll see in your WooCommerce, you'll have one more option. Yes, I use. Yes. So Payment. you can see in payment options, right? Yes. You can see InstaMojo is over there, right? Congratulations, it is over there. It was not there, but now because you have installed, then now it is automatically getting reflected in your WooCommerce option, wherein you can manage your payments from here. By clicking on manage, you have to put something, the details which I have shown you, which you will create in your account. If you are going to sign up a new account of InstaMojo, then you have to copy something from there and save it to your website. Yes, Ayush, how this can be done? Please click on manage. Okay, so just click on this manage option. And scroll it down, and you can see here like two options, right? These are the API credentials, client ID and client secret, right? Like this. You have to just copy from your InstaMojo account your client ID and your client secret, right? You have to copy from there and paste it here, right? Then you can simply just click on save changes from here. So by doing this, you can successfully add a payment gateway into your website, right? So are you through this? आप में से सबको ये समझ में आया पेमेंट गेट पे इंटीग्रेट कैसे होता है? Yes. अगर किसी की कोई क्वेरी हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट. Those who are creating two-way communication websites, ऑनलाइन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां से आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट्स की बुकिंग ले एंड ऑटोमेटिक आप प्रोडक्ट्स को वहीं से सेल कर सको, तो आपके लिए WooCommerce और
आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन दोनों बहुत जरूरी है। तो आपको भले ही चाहिए तो हम एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, यू कैन आस्क। जितनी बार पूछोगे आपको उतना क्लियर होगा। ठीक है, लक्ष्मी जी ने कहा एक बार फिर रिपीट करें, तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सो व्हाट फ्रॉम बिगनिंग, जब भी हमें क्या करना है कि हमें वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वहां, और दूसरा प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी हो और वहीं कोई क्लिक करे और पे हो जाए। तो ये तो होता है कस्टमर साइड से, किसी ने क्लिक किया और पे हो जाए। तो एज अ वेबसाइट ओनर आपको उसमें दो चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। पहला, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नीचे एक पे बटन, पे बटन पे प्राइस लिखा होगा, और वो पे बटन जब क्रिएट होगा जब आपका बैंक रेडी हो पेमेंट लेने के लिए। बट इंडियन बैंक्स जितने भी हैं उनकी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो डायरेक्ट आपकी पेमेंट्स को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। दे आर नॉट फैसिलिटेटिंग दिस वे कि पेमेंट किसी भी मोड से आती हो और पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द एंड ऑफ बैंक्स। Then there is a gap, and to fill this gap there are third party payment gateways like InstaMojo, PayUmoney और Razorpay। अब इन तीनों से ही क्या करना है आपको, दो तरह से काम होता है। वन, you can create payment link from there and you can start marketing on social media channels. That is one way of collection payment, one way of selling. And the another way is you integrate your third party payment gateway with your website। वेबसाइट के साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया। इफ somebody visiting your website and if he likes to have your product or your service, then he has to click over there and your website will give the option to pay। वहीं से पे करके आप वहां से पे कर सकते हो और आप उनको सर्विसेज दे सकते हो। आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेगी। देन वो होगा कैसे, उसके लिए दो चीजें चाहिए आपको। पहला, पेमेंट गेटवे चाहिए आपको, दूसरा वूकॉमर्स चाहिए। वूकॉमर्स मींस ऑल द कमर्शियल एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर वूकॉमर्स पार्ट ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट्स। तो वूकॉमर्स में जाके हमें पेमेंट सेटिंग्स करनी है और उसमें बहुत सिंपल है। एक बार आयुष प्लीज वूकॉमर्स में जाके पेमेंट सेटिंग्स को एक बार सारे टैब्स को ओपन करके दिखा दो कि कौन सी सेटिंग्स वहां होती है। ये सर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट पासवर्ड ये कहाँ से आया? ये इंस्टामोजो जहां मैंने दिखाया था ना, जब आप जाओगे तो वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट पासवर्ड दोनों इंस्टामोजो देगा। जिस भी आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करोगे ये दोनों चीजें वहां से मिलेंगी उनके डैशबोर्ड से, और उनको लाके आपको यहाँ वूकॉमर्स में उनको सेव कर देना है। और सेव करते ही आप अपने प्रोडक्ट की ₹1 कॉस्ट रखें और उस प्रोडक्ट से आप उसको टेस्ट कर लें। जब वो सक्सेसफुल हो जाए तब आप वेबसाइट को सक्सेसफुल मानेंगे। सर कितना पेमेंट लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट? 2% लेते हैं, 2% प्लस GST। ठीक है सर। ओके, यस आयुष प्लीज। सो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको वो कॉमर्स में पेमेंट सेटिंग कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है इंस्टामोजो फॉर वो कॉमर्स, राइट। सो प्लगइन सेक्शन में हम गए, तब हमने वहां से ऐड न्यू किया, देन हमने इंस्टामोजो फॉर वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लिया, राइट। देन सिंपली क्लिक ऑन दिस वो कॉमर्स ऑप्शन लाइक दिस एंड okay, just a second, yes, you can see वो कॉमर्स के नीचे जब हम वो कॉमर्स पे जाएंगे तो जस्ट क्लिक नहीं करना आपको, उसके नीचे हमें एक सब मेन्यू दिखेगा, राइट। होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स एंड सेटिंग। सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन। ठीक है, देन ये अभी जनरल सेटिंग ओपन है, यहाँ से हम कंट्री, स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से हम करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन सिंपली सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट्स ऑप्शन।
तो सिंपली हमने क्या किया, पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने जब प्लगइन इंस्टॉल किया तो वो हमें यहाँ पे इंस्टामोजो का प्लगइन सबसे लास्ट में शो कर जाएगा। ठीक है, जब तक हमने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया था तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, राइट। जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है तो हमारे सामने एक इंस्टामोजो का ऑप्शन भी आ गया है। तो इंस्टामोजो के ऑप्शन यहाँ पे आने के बाद जस्ट सिंपली इसे इनेबल कर देना। यहाँ से आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हमें अगर इसे अपनी साइट में इंटीग्रेट करना है तो हमें यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो इंस्टामोजो पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पे जैसे सर ने आपको दिखाया था क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट सीक्रेट, राइट, ये आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे। अभी ये बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम का उठा रहा है तो मैं ये नहीं डालूंगा यहाँ पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करके वहां से इंस्टामोजो के अकाउंट से कॉपी करके आपको क्लाइंट आईडी यहाँ पे डालनी है। ये इस तरह के डिजिट्स होंगी आपकी, काफी लाइक लेंथी से डिजिट्स हैं ये, एंड क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैं प्रोडक्ट्स पे गया, मैंने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। यस, तो जैसे कि मैंने डाला था फर्स्ट वाले में वड़ा, राइट, तो मैं अभी इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे लाइक 10 रुपीज और 8 रुपीज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, आपको जस्ट टेस्टिंग करना है तो आप इसे 5 10 जो आपको नहीं, मतलब 10 ही रखें कि वो 10 रुपए से कम इंस्टामोजो अलाउ नहीं करता। तो प्रोडक्ट को 10 रुपीज मिनिमम रखना। इंस्टामोजो 10 रुपीज से नीचे की ट्रांजेक्शन्स लेता नहीं है। तो इट्स ओके आपने ये 8 लिखा है ना आयुष, उसको 12 करके 10 कर दो नीचे। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म। तो मैंने अभी सेल प्राइस पे 10 किया है और प्लीज एंटर इन अ वैल्यू लेस देन द रेगुलर। ओके, सो मैंने यहाँ पे अभी 12 कर दिया है, देन मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी इमेज लगा दी। आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके जस्ट इस इमेज पे आपको क्लिक करना है और आप जो आपके जो इमेज थी, जो वड़ा की इमेज थी आपकी, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेव करके। लाइक जैसे कि के जस्ट सेकंड, ये आपका कौन से वाला इमेज था? पाव के साथ में था ना, वो बड़ा ही था। हाँ, ओके ये कर ओके दो। ओके, ठीक है समोसे के साथ में पड़ा ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको इमेज को मैंने चेंज कर दिया। और देन हम यहाँ से कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं कि मान के चलिए आपका जो ये समोसा है कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, देन सिंपली मैंने एक नई कैटेगरी बना ली। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट फूड। ठीक है, देन मैंने इस पे फास्ट फूड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐड न्यू कैटेगरी पे, राइट। तो आप देख सकते हैं फास्ट फूड वहां पे ऊपर आ गया है। ठीक है, तो फास्ट फूड की एक मैंने न्यू कैटेगरी बना ली है। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है फास्ट फूड की कैटेगरी में ऐड हो चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और एक इमेज लगा दी है और यहाँ पे हमने प्राइस सेगमेंट लगा दिया। ठीक है, अभी सिंपली मैंने इसे क्या किया, यहाँ से अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अभी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मतलब हमने अभी लगाया नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मैं रिफ्रेश करके आपको प्राइस और वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आएगा आपका, ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है आपकी, तो ये यहाँ पे शो करेगा। जिस रिफ्रेश किया मैंने इसे, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन दिस वन। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, रेगुलर जो प्राइस है वो क्या था 12 था यहाँ पे, और उसे कट करके 10 रुपीज आ रहा है यहाँ पे, जो कि हमने वो कॉमर्स में सेटिंग की थी पेमेंट्स में। ठीक है, तो जस्ट सिंपली इस पे क्लिक किया मैंने, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यस, ठीक है, और क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, वड़ा हैज बीन एडेड टू योर कार्ट एंड इफ यू वांट टू परचेज देन सिंपली क्लिक ऑन व्यू कार्ट ऑप्शन, राइट, एंड प्रोसीड टू चेकआउट। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा तो ये मुझे ये बोलेगा कि आपका जो पेमेंट का अकाउंट है वो इंटीग्रेट नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमने नहीं किया है। ठीक है,
तो प्रोसीड टू चेकआउट पे मैंने क्लिक किया। यस, क्लिक करने के बाद देन एंट्रीज मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा। यस, आपसे ये नाम पूछेगा आपका और डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। देन क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर दिस ऑप्शन। एरर 404 आने वाला है शायद। नो, पेमेंट गेटवे, अभी yes. आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऑथराइजेशन फेल्ड। ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो आपका अकाउंट था जो इंस्टामोजो पे, वो अभी तक आपने नहीं बनाया है। ठीक है, तो अकाउंट आपको पहले बनाना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा इंस्टामोजो के मैनेज सेक्शन में। ठीक है, देन उसके बाद ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा और सिंपली आप इसे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका 10 रुपीज का जो बड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, आप लाइक कोई भी आपको कोई टी शर्ट्स का बनाना है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो आप यहाँ से खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपका सेम ही ऑप्शन रहेंगे, जस्ट आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है पेमेंट गेटवे। आइस पीपल ट्रेनर्स को दिखा दो एक बार, उनको एक डेमो, कैसे वहां से पेमेंट पे ले जाता है वो पीपल। नहीं, वो वाला दिखाओ। ओके, इन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम कोर्स को बुकिंग करके चलते हैं, उस वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विक्स पे है। जस्ट सेकंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। ये जैसे कि कोर्सेज है, मैंने यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक किया। ओके, 6 Feb। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक किया। देन अगर इसको आपने लाइक इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो मोर इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको पूरी डिटेल्स दिखा देगा यहाँ से। देन आपको ये शेड्यूल दिखा रहा है कि कब से कब तक क्लासेस हैं, एंड देन क्लिक ऑन दिस बुक नाउ बटन। ठीक है, तो बुक नाउ पे करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली डिटेल डालनी है जैसे आपने पहले डाली थी, और यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है। ठीक है, ये कूपन कोड का ऑप्शन आपका वर्डप्रेस में भी लग सकता है, वहां पे ऑप्शन दे रखा है। अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो आप वो कर पाएंगे वहां से, और डिसेबल कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये डालने के बाद अभी जैसे कूपन कोड मेरे पास मान लो नहीं है, तो मैंने पे नाउ पे क्लिक किया। यस, तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कार्ड नंबर मांग रहा है। ठीक है, कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायर डेट क्या है, और इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना लाइक जो भी पेमेंट के लिए जो आप यूज करते हैं, उसे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के सिंपली आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट पर भी आपका हो जाएगा, जैसे ये विक्स पे हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया था। तो किसी भी प्रोडक्ट पे आपको लगाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना है। ठीक है, लाइक इस वाले में। ये देखिए, आप यहाँ से कैटेगरीज देख सकते हैं। ये अभी मैंने जो न्यू बनाई है, फास्ट फूड की कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये वड़ा, ये आप यहाँ से जो आपको डिलीट करने हैं आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मुझे ये 4 आइटम डिलीट करने हैं तो मैंने ये 4 यहाँ से सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा बल्क एक्शन। ठीक है, बल्क एक्शन में आपको करना है मूव टू ट्रैश। ठीक है, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करने के बाद मैंने जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अभी वो नीचे से सब डिलीट हो गए हैं। अभी देखिए ये प्रोडक्ट्स थोड़े से रह गए हैं हमारे। अगर हमें इसे दोबारा से लाना है तो आप ट्रैश में जाके इसे वापस ला सकते हैं। ये देखिए, आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है जैसे पहले किया था।
1 2 3 4 एंड बल्क एक्शन रीस्टोर और डिलीट परमानेंटली। अगर परमानेंटली डिलीट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, रीस्टोर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रीस्टोर पे क्लिक किया, देन अप्लाई। ठीक है। लक्ष्मी मैम, आप अपना प्लीज कोऑर्डिनेट भेज देंगे अपने वेबसाइट के आयुष को, ताकि वो वहां से ओपन करके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दे जो प्रॉब्लम है आपकी। यस, हाँ। मीनवाइल स्मिता मैम, आप प्लीज वेट करें, आप अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं, आपका वो इशू रिजॉल्व हो गया है जो आपकी वेबसाइट में आ रहा था। आयुष इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, इट हैज बीन रिजॉल्व, नाउ यू कैन मूव अहेड। यस सर। हाँ, स्मिता मैम का शो कर दें बस, जो गोडेडी वाला हाँ सर, आयुष सर ने किया है सर। हाँ, वो हो गया, Just a आपका sec. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैम कैन यू टेल मी लाइक डोमेन नेम क्या था, एक बार बताएंगे मुझे? वी स्मार्ट। वी स्मार्ट, ओके ओके, यस। डबल टी। ओके। हाँ, तो ये अभी क्या किया है हमने, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसके पैनल में जाना है। तो सिंपली मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसे न्यू टैब में पेस्ट कर दिया। देन मैंने इसके बाद लिख दिया WP एडमिन, WP-admin एंड क्लिक एंटर। ठीक है, ये अभी मैंने एंटीवायरस एक्टिवेट है तो ये इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। तो सिंपली आई अंडरस्टैंड द रिस्क्स एंड टेक मी देयर एनीवे। यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक मैंने अपने उससे बनाया था। आप मैम इसे चेंज कर सकते हैं बाद में। ओके। आप लॉगिन दे देना उनको। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अभी ओपन हो गया ये। ठीक है, तो ठीक है मैम, तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ही मैंने बताया था आपको, सिंपली एक बेसिक सी थीम इंस्टॉल करनी है। आप कोई भी कर सकते हैं। तो अभी हमने जो सेशन में बताई थी वो हमने एब्स्ट्रैक्ट थीम बताई थी। ठीक है, तो सिंपली अपीयरेंस में जाके आपको थीम सेक्शन में जाना है। देन सिंपली क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू बटन। आयुष सर, प्लीज सेंड मी ID and password ओके ओके so I can show you. ओके, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। ठीक है आयुष, बस बाकी तो वो Yes. स्मिता मैम आगे, स्मिता मैम आप आगे करेंगे, फिर आपको सपोर्ट हम आगे कहीं फिर रुकते हो तो बताना। हाँ यस सर। अभी वो ऑब्स्टेकल जो भी था वो निकल गया है वो। हाँ हाँ। हाँ, हमने वो निकाला कैसे है, गोडेडी के साथ बात की है। गोडेडी Okay. की जो बेसिक फाइल्स थी उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए हमने। और क्योंकि वो आपको यूजर को डायरेक्ट समझ में नहीं आता उतना, ऑल ऑफ सडन आपको वो वहां जाके हमने उसकी डायरेक्टरी चेंज की है, तो फिर Okay. जाके वो फैसिलिटेट हो पाया है।
Okay. और उसमें सबके साथ थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। 3 GoDaddy के अकाउंट है हमारे पास, तीनों GoDaddy के अकाउंट्स में अलग अलग प्रॉब्लम रही है, बट वो फैसिलिटेट हो जाता है। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, फ्यूचर में Okay. बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना है। आप ये लॉगिन लें, बनाना हाँ। शुरू करें, और Yes. लॉगिन चेंज भी कर सकते हो, जब चाहे जब चेंज कर लें। बेटर है अभी जब तक आपकी पूरी वेबसाइट नहीं बनती तब तक इसको ऐसे ही रहने दें, ताकि आयुष आपको सपोर्ट करता रहेगा, उसके पास लॉगिन है इसका। Yes, sir. जब ये Sure. पूरी तैयार हो जाए फिर आप बिल्कुल चेंज कर लेना। फिर आयुष के पास उसको रखने की जरूरत, हमारे पास भी जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट की Yes. जरूरत पड़ेगी तब हम कर रहेंगे, ठीक है? Yes, sir. Definitely, sir. ओके, और ग्रेट। आयुष सर ने बहुत हेल्प की। Thank you so much for that. मैम हमारी ड्यूटी है। Thank you, ma'am. Thank you. Yes, okay. ठीक है। और चलो लक्ष्मी मैम की वेबसाइट ले लेते हैं, 10 मिनट टाइम हो रहा है हमारा, तो तो मैंने दे दिया है उनको। बस मैम अब नारियल आप ही की वेबसाइट पे फोड़ेंगे। मैम आपका विक्स पे था आई थिंक। नहीं, वर्डप्रेस पे। ओके ओके, वर्डप्रेस पे था जस्ट। लक्ष्मी मैम का शायद ये दूसरा वेबसाइट का कोर्स है, पिछले वाले कोर्स में तो एक्चुअली आई कुड नॉट डू मच अर्लियर, तो इसीलिए अभी। इस बार तो पूरी शिद्दत से आप नारियल फोड़ने के चक्कर में है, Yes, sir. उद्घाटन करके। यस, I have a surprise for you. By the end of the course, I will also show you my Wix website. वाओ, ग्रेट। तो दोनों पे काम दैट्स चल रहा है नाइस, मेरा। दैट्स हाँ नाइस। जी। चलो बहुत बढ़िया। विक्स पे भी हमारे 3 लोग हैं, रचना मैम बना रही है, मीनाक्षी मैम बना रही है, और आपने भी एक बनाई है। तो मैं जो दोनों लोग पे विक्स पे बना बना, जी जी, और मैंने जब उस दिन सिखाए थे उसके आगे नहीं बढ़ी हूँ मैं। हाँ मैम बढ़ना पड़ेगा, अब आपको पुश करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए। हाँ, एक्चुअली कुछ था, हम्म। डेफिनेटली मुझे करना ही है और मैं करूंगी अगली बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपके पैसे हजम नहीं होंगे अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई तो। भेजा है ना आपको? सर मुझे उससे ज्यादा है ना, वेडनेसडे मॉर्निंग में व्हाट्सएप का थोड़ा सा डाउट था, जो मैंने किया था ना व्हाट्सएप क्लास, हाँ हाँ, उसका डाउट था। वो जो 2 व्हाट्सएप बिजनेस का, तो वेडनेसडे मॉर्निंग वो हो सकता है क्या सॉर्ट आउट? श्योर, 100%। हाँ, तो वेडनेसडे का मुझे टाइम दे दीजिए 10 बजे के 10 to 12, आसपास। 10 to 12 फ्री है बिल्कुल। ठीक, ओके। ठीक है, 011। ओके, तो मैम आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे क्या आपको क्या इशू आ रहा है? सर एक चीज, आप फुटर में जाओगे, वहां पे मैंने एक पिक्चर डाला है, एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्चुअली, वो जो आपने लेयर का बोला था ना, बैकग्राउंड ओवरले करके। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने एक इमेज डाला तो मल्टीपल इमेजेस आ गए हैं इधर। ओके ओके ओके। आई डोंट नो व्हाई। ये जो मैम आपको ये इमेज दिखाई दे रही है अभी, ये वाली? हाँ जी, वही वही वही। ओके एक ही मैंने ओवरले में एक ही डाला, लेकिन आई थॉट इट विल कम ओनली वन टाइम, क्या कहीं बीच में रखूं ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो पूरा फिल हो गया है उसमें। आई डोंट ओके नो ओके, व्हाट टू डू विद ठीक है दैट। मैम, एक बार हम मैं देखता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंट। और आयुष, एक और है मेरा प्रॉब्लम, एक है जो समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ। आपने बताया कैसे वो पूरा एलिमेंटर में एडिट करने का, तो आई एम डूइंग एडिट विद एलिमेंटर, लेकिन क्या होता है, आपने जो बताया वो लेफ्ट में वो जो 3 लाइंस होते हैं, वहां पे क्लिक करके हम वापस वर्डप्रेस एडिटर में आते हैं ना, ठीक है, हाँ। वो टाइम पे मेरा वो जो भी मैंने चेंजेस किया है वो निकल जाता है। दैट इज माय प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है मैम, मैं हाँ माय हम प्रॉब्लम। अभी हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस करके हम वहीं से एग्जिट करेंगे, ठीक है? फिर देखते हैं कि वो सेव होता है कि नहीं होता। हाँ जी। यस।
और एक था कि यहाँ पे वो जो इमेज लगाया उसके ऊपर व्हाइट में आना है, वो व्हाइट कैसे सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट का, वो तो समझ में नहीं आया। मैंने कुछ तो ओके, करके। तो मैम हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडर सेक्शन में मुझे बताइए आपको कुछ चेंज करना है। हाँ, एक्चुअली नाम ही नहीं डाला है उधर, कैसे नाम डालेंगे, वो तो सिर्फ मेन्यू निकला उधर। ओके, जो ये मेन्यूज आपको दिख रहा है, हाँ होम, हाँ अबाउट, वर्क, तो यहाँ पे आपको अपना लाइक जैसे आपने ये लोगो लगा रखा है, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरा नाम डालना है उसमें, वो लोगों में जो ठीक है, डालना है वो नहीं, लक्ष्मी ठीक है, श्रीनिवास तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। लोगो के तो बगल में। ओके, जस्ट अ सेकंड। आई वॉज फॉलोइंग व्हाट यू सेड, बीच में वो नेविगेशन वो मेन्यू बार ओके, डालने तो का। मैम आपने हेडर और फुटर सेक्शन डिजाइन किया है यहाँ से, राइट। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो हेडर और फुटर में जो आपको चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से करेंगे, राइट, इसी वाले सेक्शन में से जहां से आपने बनाया है, या ठीक है। तो सिंपली हेडर में अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ यहाँ से। यस, तो ये हमने इमेज सेलेक्ट किए यहाँ से। आई वॉज नॉट एबल टू रीसाइज द लोगो, वो ओके, कैसे करना है वो भी समझ में नहीं आया मुझे, वो जैसा निकला उतना ही है। आई वाज नॉट ठीक एबल है टू। मैम। ये देखिए, मैंने सिंपली इस एडिट सेक्शन पे क्लिक किया, एडिट साइट लोगो। देन मैं यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शन दिखाई दी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। सो मैंने क्या कहा था, स्टाइल पे क्लिक करना है आपको, देन यू कैन सी विड्थ ऑफ द लोगो, ओके। राइट। आप देख सकते हैं वो चेंज हो रहा है, राइट। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेंज कर लेना है ये। राइट, ठीक है। तो मैं अभी इतना यहाँ पे रख देता हूँ। ओके। देन हमारा जो ये है ये चेंज हो गया है। और इसका अलाइनमेंट मैम आप थोड़ा सा लेफ्ट में करिए, अभी ना ये मिडल में दिख रहा है, राइट। तो राइट। अलाइनमेंट के लिए भी सिंपली क्लिक ऑन एडिट, एडिट साइट लोगो, देन कंटेंट, एंड यू कैन सी मैम, देखिए आप सेंटर में अलाइन कर रखा है आपने ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसको लेफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ओके। ठीक है। अभी आप बता रहे थे कि आपको इस लोगो के साथ में कुछ लिखना है अपना नाम, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैप्शन का, हाँ हाँ। इसे यस कर दीजिए और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या लिखना है आपको। लक्ष्मी LAKSHMI SRINIBAS SRIN IBAS SRINIBAS। ओके, SRINIVAS, ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं वहां पे हाँ। आपका नेम वहां पे आ रहा होगा, ठीक है। राइट तो राइट। उसके बाद हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ से, मैंने आपको शायद बताया नहीं था, लिंक भी लगा सकते हैं मैम। आपको अपने लोगो पे लिंक लगाना है ना, तो आपका लोगो क्लिकेबल बन जाएगा, कि आपके लोगो पे कोई क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो नहीं करते हैं, अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लिंक पे क्लिक बाद में करना है करते आपको। हैं। नहीं, वो बाद में करते हैं, वन सेकंड। हाँ, ठीक है, तो मैंने अभी इसको अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हेडर में और कुछ चेंज करना है आपको इसके अलावा। नहीं, दिस इज द अदर प्रॉब्लम, आप देखो सब डबल डबल है उधर। ओके ओके, ये आप कह रहे हैं कि ये डबल है। हाँ, हर चीज डबल हो गया। इज इट बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज ट्राइंग टू डिलीट द होल थिंग एंड स्टार्ट अगेन, लेकिन वो भी नहीं कर पाई, तो वो डबल कैसे निकालना? इज इट दैट देयर आर टू पेजेस इन द। यस यस मैम, मैं एक सेकंड में देखता हूँ ये यहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पेजेस जो हैं बना दिए हैं ज़्यादा। हाँ, सिर्फ होम किया है मैंने, वो भी पूरा नहीं किया। हम्म। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज, ओके। हाँ, तो मैम ये क्या हुआ है मेरे हिसाब से, ऑल पेजेस 7, पब्लिश्ड पेजेस 6, ठीक है। तो कैसे हुआ मालूम नहीं है सर मुझे, आई डोंट नो व्हाट आई डिड। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। मेन्यू, मेन, लास्ट मेन्यू, डिफॉल्ट, लेआउट, सेंटर,
सब मेन्यूज, एरो, प्लगइन्स, मेन्यू एनिमेशन। मैम ये पब्लिश करने के बाद भी आपको ऐसे दिखता है? कभी ऐसा दिखता है, एक बार, आई डोंट नो। ओके, जस्ट अ सेकंड, हम देख लेते हैं एक बार पब्लिश करके। नहीं, यहाँ पे हमें कम दिख रहा है ये। हाँ, अभी देखिए। हाँ ओके, तो अभी यहाँ पे ठीक है। होम, अबाउट, वर्क, सर्विस, कॉन्टैक्ट। हाँ जी। मे बी मैम कोई ये वैसा कोई ब्राउजर का इशू या कुछ, या ब्राउजर का तो खैर नहीं होगा, ये कुछ बग्स हो सकता है एलिमेंटर में ही, कोई जैसे कैशे वगैरह इसमें जनरेट होते रहते हैं ना, तो शायद उस वजह से ही आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, क्योंकि आपका वही शो कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जस्ट अ Okay. सेकंड। ओके, जब यहाँ, हाँ तो हाँ, व्हेन यू डू दिस, हाँ सर करिए ठीक करिए है, मैंने एग्जिट टू डैशबोर्ड किया। हाँ चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव। ओके, मैंने लीव किया यहाँ से। हाँ, जब एक्चुअली मैं आपने कॉल किया था ना सर, तो वो टाइम पे मैंने वहां पे लीव किया और मेरा सब गया वो होम पेज से। ओके, देखिए मैम, लेकिन मैंने जो ये सेव किया ना, आप देख सकते हो, मैंने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया यहाँ से, देखो, तो ये वैसे का वैसे है, राइट। हम्म तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें कुछ आ भी रहा है तो आप उसे जस्ट आपको सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करके चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आए लीव का, ओके का, आप लीव कर देना, ठीक है। ओके ओके, वही हाँ। वो डाउट था मुझे। मैं हर जो भी चेंजेस करती हूँ हर बार मैं अपडेट कर रही हूँ मैं, लेकिन वो फाइनली वो, आई मीन माय क्वेश्चन इज आयुष, जो हम वो एडिट विथ एलिमेंटर का जो सेक्शन रहता है जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो वहां से एग्जिट नहीं कर पाएंगे ना? वी हैव टू कम बैक टू दिस वर्डप्रेस, एडिट विथ वर्डप्रेस आने के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं ना? एक सेकंड मैम, आप ये बोल रहे हैं मुझे कि मान के चलिए आपको कौन इस सा भी पेज लो, आप कुछ भी लो। हाँ, मैं कोई भी एक पेज ले लेता हूँ जिसपे मैं एलिमेंटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, दैट इज माय, वो मैं सोच रही थी 2 बार वहां गलती की मैंने, क्योंकि मेरा आप, हाँ ठीक है, डाला। तो अभी हमारा ये पेज ओपन है, आप मुझे बता रहे हैं कि ये हमारा पेज सक्सेसफुली डिजाइन हो चुका है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे आए, हाँ जी राइट, हाँ जी और हमारा डेटा भी सेव रहे। हाँ जी। ओके, तो मैम अपडेट कब सिंपली करना है? आपको क्या, उसके बाद, अपडेट करने हाँ के बाद। हाँ 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 बिल्कुल। देखिए मैम, अभी हमने क्या किया है, अभी मैंने इसको क्या किया है, जो हमने पहले से पेज एडिटिंग किया था, मैंने उसे ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ा, तो यहाँ पे मेरा जो अपडेट का बटन है वो डिसेबल है, करेक्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ या कुछ चेंज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये बटन मुझे ग्रीन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मान के चलिए हम इसको दोबारा से कुछ डबल एस कर देते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो अभी ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अब मैं डबल एस पे इसको यहाँ से सेव करता हूँ और मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी अपडेटेड है। अब आपको सिंपली यहाँ से इस बटन पे जाना है और एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है, हाँ ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल एस है, राइट, और मैं इसको सॉरी रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपको डबल एस दिखेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब ठीक है, अब प्रॉब्लम सोल्व है ये वाली। हाँ, वही नहीं, जब आपको भी आया था ना वो लीव आया था ना, वो एक हाँ मेन्यू हाँ हाँ हाँ, आया कोई था ना, प्रॉब्लम नहीं है मैम वो। आता रहा हाँ 2 बार। हाँ हाँ हाँ, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कई बार मैम हो जाता है। ओके ओके मे बी मैम ये एलिमेंटर का कुछ इश्यू हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, दैट वाज माय क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं उसे सिंगल ऐसे ही कर देता हूँ दोबारा से। हाँ जी, दैट्स ओके, आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, एक और चीज था, एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ, यहाँ पे जो साइट टाइटल रहता है ना, हाँ जो वो वहाँ पे जो आता है द एक्सपर्ट टबैको टीचर ट्रेनर करके, हाँ तो वो चेंजेस करना है तो होस्टिंग में करना है ना वो? नहीं, कहाँ पे मैम, दोबारा से बताइए मुझे एक बार। हाँ, ऊपर 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 वो राइट में, अभी आप देखो यहाँ पे एलिमेंट, नहीं वो मेनू बार में टॉप में जाइए आप, टॉप में मेन्यू बार में मैं टॉप में यहाँ पे ब्लू स्क्रीन पे, ब्लू, नहीं नहीं, अपना ब्राउजर का। हाँ ब्राउजर का मैं यहाँ पे गया। हाँ हाँ हाँ,
वो वाला अगर मेरे को वो वर्डिंग ओके ओके, जो आप ये कह रहे हैं कि द एक्सपर्ट अबेकस टीचर, हाँ वो टीचर निकालना है, सिर्फ ट्रेनर डालना है, वो टीचर हाँ निकालना मैं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक वो यहाँ से होता है। अपीयरेंस में जाने के बाद, नो अपीयरेंस में नहीं है, सेटिंग में जाके मे बी रीडिंग ऑप्शन, योर लेटेस्ट पोस्ट एंड स्टैटिक है। वो पेज। ब्लॉग्स के लिए होता है सर, वो रीडिंग का। ओके, नो बट वो जो मैंने डाला ना वो होस्टिंग में डाला है एक्चुअली। नहीं मैम, चेंज तो जरूर होगा, वो हो जाएगा अंदर से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजिंग का ऑप्शन तो जरूर होगा। डिस्कशन मीडिया परमा लिंक्स, ओके जनरल, ये रहा मैम, देखिए साइट टाइटल, ओके तो ये आपको, जनरल, हाँ सेटिंग में जाना है आपको, जनरल में जाना है, ठीक है। अब क्या हटाना है यहाँ से मुझे बता दीजिए। वो टीचर बीच वाला टीचर। सिर्फ टीचर हटाना है, राइट? हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ जी, ओके ओके गुड, द एक्सपर्ट अबेकस ट्रेनर, हाँ जी ठीक है। तो इसकी टैगलाइन भी अगर मैम कुछ देनी है आपको तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे अभी है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ओके ठीक है, आई कुछ डू आपको दैट, अगर, ओके ओके ठीक है। बाद में मैं तो कर, मैंने, ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ से सेव कर दिया, हाँ जी ठीक है। आई टेक केयर और ऑफ, अभी मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ देखो मैम, आप देख सकते हैं, हो गया ओके ठीक सर। है। तो हेडर हो गया हमारा, और ये हो गया यहाँ से, और अभी क्या रह गया मैम इसके बाद? नहीं नहीं उतना ही था मेरा डाउट। ठीक है, तो अभी आपका डाउट क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आयुष। ओके ओके सर, ओके ओके मैम। दैट्स ओके। किसी और का कोई डाउट है? यस प्लीज। नहीं, चलिए एनी हाउ। अच्छा, जिनको बिक्स पे वेबसाइट बनानी है, आयुष कल 11 बजे का रखें बिक्स पे आधे घंटे? कल 11 बजे आधे घंटे रखते हैं, रचना मैम, मीनाक्षी मैम, और जिनको भी बिक्स पे वेबसाइट बनानी है वो कल 11 बजे आधे घंटे के लिए हम कनेक्ट होंगे। आप अपनी अगली एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम डिस्कस कर सकते हैं, पर प्लीज आप अपनी वेबसाइट का जो आउटलाइन है वो करके लाएं। आप अपना वेबसाइट का एक जो बताया था उस फिक्स से आउटलाइन को कुछ कंटेंट रख के लाएं उस पर, फिर हम उसे आगे लेके चलेंगे। कैन आई आल्सो जॉइन टुमारो? श्योर, 11:30। बाकी लोग आएंगे तो आप भी जरूर आना उनके साथ। रचना मैम, आर यू अवेलेबल? कल है आप 11:30? रचना मैम? नो, आई थिंक शी इज नॉट देयर। चलिए, मीनाक्षी मैम है कल, अगर वो आते हैं तो प्लीज आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। गुड डे, गुड नाइट थैंक यू सर, आप सबके लिए। ठीक है, ओके जी, ओके ओके ओके, गुड Thank you, नाइट, sir. ओके, वेलकम जी, ओके।